चलो भी चलो, फिर शुरू करते हैं आप एक्सरसाइज 12B रिफ्लैक्शन चैप्टर। देखो ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ 12B ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 12A ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨੀਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਰਨ ਦੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 12B ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਈ ਤਾਂ 12A ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੇਪਰ ਸਾਰਾ 12B ਚੋਂ ਆਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 12B ਹੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਾਂ ਤਾਂ 12A ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ 12B ਕਰੋ। ਅਟੈਂਪਟ ਦਿਸ ਕੁਐਸਚਨ ਔਨ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਪੇਪਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਲਾਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਫਟਾਫਟ। ਪਲਾਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ ਹੈ, ਇਹ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਉਰੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਨਾਲ ਅਗਰ ਕੋਈ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਰੋਂ ਦੀ ਉਰੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲਦਾ ਬੇਟਾ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਨਾਲ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਰੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਉਰੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਰੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਰ ਅਗਰ ਉਰੇ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੇਟਾ ਇੱਧਰੋਂ ਦੀ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਉਰੇ ਵਾਲਾ ਉਰੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਰੇ ਵਾਲਾ ਉਰੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆ ਗਿਆ ਸਮਝ? ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਅਗਰ ਉਰੇ ਵਾਲਾ ਉਰੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਵਾਲਾ ਇੱਧਰ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਨਾਲ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਉਰੇ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਨਾਲ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਉਰੇ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਰੋਂ ਦੀ ਉਰੇ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਉਰੋਂ ਦੀ ਉਰੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਐਵੇਂ ਉਰੇ ਵਾਲਾ ਉਰੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਰੇ ਵਾਲਾ ਉਰੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ ਕੁਆਡਰੈਂਟ। ਅਗਰ ਉਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਉਰੋਂ ਦੀ ਉਰੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ ਨਾਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹੇ ਤਾਂ ਉਰੋਂ ਦੀ ਉਰੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇੱਧਰ ਵਾਲਾ ਇੱਧਰ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸਮਝਣੀ ਹੈ? ਇਹ ਫਸਟ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਥਰਡ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਫੋਰਥ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਸਟ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਐਕਸ ਐਂਡ ਵਾਈ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਾਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਹੈ। ਇਹ ਥਰਡ ਕੁਆਡਰੈਂਟ 'ਚ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਮਾਈਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਫੋਰਥ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖ ਪਲਾਟ 3,2 ਐਂਡ 5,4 ਔਨ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਪੇਪਰ। 3,2 ਲੱਭੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। 3,2 ਠੀਕ ਹੈ। 5,4 5 ਉਰੇ ਹੈ, 4 ਉਰੇ ਹੈ। ਆ ਦੇਖੋ 3,2 ਵੀ ਬਣਾ ਲਿਆ, 4, ਜੋ ਵੀ ਸੀਗਾ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਂ ਪਲਾਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਪਲਾਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਲਾਟ ਕਰਤਾ। ਰਿਫਲੈਕਟ A ਐਂਡ B ਇਨ ਦਾ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਟੂ A' ਐਂਡ B' ਰਿਸਪੈਕਟਿਵਲੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ A ਹੈਗਾ, ਇਹ B ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਨਾਲ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ ਹੁਣੇ ਕੰਸੈਪਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅੰਦਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਉਰੇ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਨਾਲ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਉਰੋਂ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ? ਉਰੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਹੈ? ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ। ਤਾਂ 3,2 ਫਸਟ ਕੁਆਡਰੈਂਟ 'ਚ ਹੈ, ਫਸਟ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਤੋਂ ਫੋਰਥ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਫੋਰਥ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ 3 ਪਲੱਸ ਦਾ ਤੇ 2 ਮਾਈਨਸ ਦਾ। 3 ਪਲੱਸ ਦਾ 2 ਮਾਈਨਸ ਦਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਉਰੇ ਆ ਗਿਆ 3,-2 ਆ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ? ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਦਾ ਸਾਈਨ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ। ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਡਿਜਿਟ ਪਲੱਸ ਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਡਿਜਿਟ ਮਾਈਨਸ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਲਾਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਵੀ ਉਰੋਂ ਦੀ ਉਰੇ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਕਿਹੜਾ? ਫੋਰਥ ਕੁਆਡਰੈਂਟ। ਫੋਰਥ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ। 5,-4 ਆ ਦੇਖੋ 5,-4 ਆ A' ਹੈ, ਇਹ B' ਹੈ। ਆ ਗਿਆ ਸਮਝ? ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਓਮੈਟਰੀਕਲ ਨੇਮ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ A B ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ। ਉੱਥੇ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੇਪ ਬਣ ਗਈ? ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸ਼ੇਪ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਟ੍ਰੈਪੀਜ਼ੀਅਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਕੀ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ
एंगल मैयर करो, ਆਪਾਂ ने करना नहीं हैगा, सिलेबस च नहीं है। इमेज ऑफ ए डबल डैश ऑफ ए वैन ए इज रिफ्लैक्टेड इन द ओरिजन। देखो ए पॉइंट कित्थे है, उरे है। अगर तुहानू कह दे ना ओरिजन नाल रिफ्लैक्शन करनी है, की करनी है, ओरिजन दे नाल रिफ्लैक्शन। ओरिजन नाल जदों भी रिफ्लैक्शन करनी होंदी है ना, तो दोनों पॉइंट्स दे साइन चेंज हो जाते हैं। ये दोनों प्लस प्लस है, दोनों ही माइनस माइनस हो जाएंगे। की आ जाएगा -3 -2 -3 -2। ठीक है, ये मैं उरे लिख भी देना तुहाडे नोट्स वास्ते। अगर कोई पॉइंट सीगा मेरे को 3,2, अगर मैनू कह दिता जाए वैन रिफ्लैक्टेड इन ओरिजन, जदों ओरिजन नाल रिफ्लैक्ट करन नू कह दिता जाए तो दोनों साइन बदल दो, तो ए डबल डैश हो गया। ओरिजन नाल करन ते देख, अगर बाय चांस मान ला उरे उरे 3 दा प्लस ए 2 दा माइनस, अगर इहदी ओरिजन नाल कहंदा तो ए माइनस कर दो, ए प्लस कर दो। समझ आ रहा है? मतलब जो भी तुहाडे कोल साइन अवेलेबल होणगे तो तुसी उहदा की करना है, दोनों साइन पलट देने, अल्टा बल्टा कर देना है। ठीक है, कहंदा हुण देखो, कहंदा अगर आपां ए डैश तो ए की बनाया सी, ए डबल डैश बनाया। ए डबल डैश किवें बनिया, जदों असी ए दी ओरिजन दे नाल रिफ्लैक्शन कीती है ना, ए दी ओरिजन नाल रिफ्लैक्शन करन ते इत्थों दी ए बन गया। कहंदा अगर असी ए डैश तो ए डबल डैश बनाना होए, मतलब उरों दी उरे आना होए, तो ऐसा की करिए। आ देखो, तुहानू दिखिया नहीं लगता, ए डैश उरे है, यह ए डैश है, ये ए डबल डैश है। अगर ए डैश तो ए डबल डैश आना होए तो ऐसा की करिए, तो असी लिखांगे, असी वाई एक्सिस नाल रिफ्लैक्शन करांगे, तो पॉइंट उरों दी टपक के उरे आ जाएगा, है ना। आ देखो मैं तुहानू होर वधिया तरह समझाना। इस पॉइंट का केड़ा है, 3,-2 है ना, तो जदों वाई नाल रिफ्लैक्शन करांगे तो पॉइंट उरों दी उरे आना चाहिए। तो ये केड़ा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर की हुंदा है, दोनों ही चीज़ां नैगेटिव होंदियां ने। 3, ये देखो ये अपने कोल की है 3,-2 है। जदों मैं इनू थर्ड क्वाड्रेंट च भेजांगा, थर्ड क्वाड्रेंट च दोनों ही माइनस दिखने चाहिए ने, -3 -2। कई बच्चे पूछते हैं भी माइनस माइनस तो प्लस हो जाना चाहिए, नहीं, क्वाड्रेंट का साइन लगाना है, दोनों डिजिट्स के अगे माइनस लगा दो। आ देखो, जदों हुण क्वेश्चन का सही आंसर की होया, जदों मैं इस पॉइंट तो इस पॉइंट के अंदर आना है, तो मैनू की करना पेगा, मैनू वाई एक्सिस नाल रिफ्लैक्शन करनी पेगी, तो मैं इधरों दी इत्थे आ पावांगा डायरैक्ट। सैकेंड क्वेश्चन शुरू करते हैं। 3,0 एंड -1,0 आर इनवेरिएंट पॉइंट अंडर द रिफ्लैक्शन विद L1। पहला तो इनवेरिएंट भी समझांगे, नाल क्वेश्चन भी करांगे। 3,0 कित्थे है, 3,0 ए सीगा, ठीक है, -1,0 यह सीगा। हुण देखो ये दोनों जिहड़े पॉइंट ने 3,0 एंड -1,0 ये कित्थे ने, आर ऑन एक्स एक्सिस। ये दोनों ही पॉइंट कित्थे ने, एक्स एक्सिस के उपर ने। हुण अगर पॉइंट एक्स एक्सिस के उपर है और उहदी रिफ्लैक्शन भी एक्स एक्सिस नाल करन नूं ही बोल दिता जाए, तो वो पॉइंट कोई भी रिफ्लैक्शन ही नहीं करनगे। अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस के उपर है तो उहदी एक्स एक्सिस नाल ही रिफ्लैक्शन करन नूं बोल दिता जाए, तो वो रिफ्लैक्ट होएगा ही नहीं, पॉइंट एज इट इज़ रह जाएगा। तो उस पर्टिकुलर केस के अंदर असी की बोलते हैं, दे आर इनवेरिएंट पॉइंट्स। समझ आ गया, क्लीयर हो गया होएगा, ठीक है। हुण इहदा सैकेंड पार्ट करते हैं। कहंदा उस अगर ये पॉइंट्स नूं तुसीं इनवेरिएंट कहना तो किस लाइन दे नाल इनवेरिएंट, L1 दे नाल। L1 केड़ी लाइन बन गई, एक्स एक्सिस बन गई। L1 बिकम आवर लाइन, जिस लाइन दे नाल अगर ये दो पॉइंट की रिफ्लैक्शन करोगे तो होएगी नहीं। देखो ना, पॉइंट अगर कोई उरे हुंदा तो उरे आ जाता है, उरे हुंदा तो उरे आ जाता है। अगर एक्सिस के उपर ही पॉइंट है तो रिफ्लैक्ट किवें हो पाएगा। समझ आ रहा है ना, ठीक है। अगला देखो 3,4 एंड -5,2। 3, नहीं हाले अपने को एक होर भी सीगा पॉइंट, मैं भुल गया। आ देखो 0,-3 एंड 0,1। 0,-3 कित्थे है, 0,-3 आ उरे है। देखो 0,-3 वाई एक्सिस के उपर आ रहा है, तो 0,1 उरे है। हुण आ देखो 0,-3 एंड 0,1 आर ऑन वाई एक्सिस। हुणे पॉइंट वाई एक्सिस के उपर ही आ गया। अगर मैनू कोई कह दे ये दो पॉइंट की रिफ्लैक्शन वाई एक्सिस नाल ही करो, हो ही नहीं पाएगी।
अगर कोई पॉइंट जिस एक्सिस के उपर है और उसी एक्सिस नाल रिफ्लैक्शन करन नूं बोल दिता जाए तो वो पॉइंट्स बन जाते हैं इनवेरिएंट। तो लाइन L2 की होएगी वाई एक्सिस, लाइन 1 की लभी सी अगी असी एक्स एक्सिस। ठीक है, हुण कह रहा है एक पॉइंट है तुहाडे कोल 3,4, एक पॉइंट लभ लो पहला 3,4 और उसनूं नाम दे दो तुसी P 3,4। कहंदा उसदी L1 लाइन दे नाल रिफ्लैक्शन करो, किहदे नाल? L1 दे नाल। चलो करते हैं। L1 लाइन केड़ी है? L1 लाइन साडी एक्स एक्सिस है, उरों दी करांगे तो पॉइंट उरे आ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट दे अंदर। फोर्थ क्वाड्रेंट केड़ा हुंदा? प्लस माइनस, की हो जाएगा 3,4। ठीक है, ये हो गया P डैश। कहंदा एक होर पॉइंट है, लिखो तुसी P, P तो लिख लिया ना, क्यों लिखो -5, -2, -5, -2 आ देखो। कहंदा इहदी भी लाइन 1 दे नाल ही रिफ्लैक्शन करो एक्स एक्सिस नाल, उरों दी उरे आ जाएगा ये। ठीक है, ये केड़ा क्वाड्रेंट हुंदा है? ये सैकेंड क्वाड्रेंट हुंदा है। सैकेंड क्वाड्रेंट च माइनस प्लस हुंदा है, ये उरे आ जाएगा देखो। ठीक है, सैकेंड क्वाड्रेंट केड़ा हुंदा है? माइनस, पहला माइनस आंदा है फिर प्लस आंदा है, यानी कि पहला माइनस फिर प्लस, माइनस फिर प्लस कर देना सीगा। ठीक है, क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंगली साइन लगा लिया करो। ठीक है, तो हमेशा सही होणगे। एक क्यू सीगा, एक क्यू डैश हो गया। फिर उस तो बाद कह रहा है राइट डाउन द इमेजेस ऑफ P एंड Q इन L2। हुण P दियां ही L2 लाइन नाल इमेजेस बनानियां ने। L2 केड़ी लाइन है? L2 साडी हैगी है वाई एक्सिस। जे पॉइंट उरे है वाई एक्सिस नाल करन ते दसो कित्थे जाएगा? इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट च है, सैकेंड क्वाड्रेंट च जदों आएगा तो की हो जाएगा? ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, -3,4, -3,4 आ देखो। क्यू पॉइंट दी भी करनी है Y2 लाइन दे नाल, मतलब वाई क्यू पॉइंट कित्थे उरे है? अगर इहदी वाई एक्सिस नाल करोगे इत्थों दी टपक के इस क्वाड्रेंट च आ जाएगा। ये केड़ा क्वाड्रेंट हुंदा है? प्लस माइनस क्वाड्रेंट हुंदा है, यानी कि 5, 2 है, दो नंबर्स ने। इस क्वाड्रेंट च केड़ा हुंदा? प्लस माइनस, यानी कि 5, -2 हाँ उरे आ गया क्यू डबल डैश, ये P डबल डैश है। ठीक है, फिर वो कह रहे हैं अगर मैं P डैश तो P डबल डैश बनना होए, ध्यान नाल सुनना, लास्ट क्वेश्चन है अज दा। अगर P डैश तो P डबल डैश बनना होए, P डैश की है? P डैश है 3,-4। इत्थों दी मैं P डबल डैश बनना होए -3,4, तो मैनू की करना चाहिए? तो मैं ऑब्जर्व किया ये भी साइन चेंज हो रहा है, ये भी साइन चेंज हो रहा है। जदों दोनों ही साइन चेंज हो रहे होण, जदों बेटा दोनों ही साइन चेंज हो रहे होण तो केरी रिफ्लैक्शन होंदी है? ओरिजिन दी। ठीक है, ठीक है। हुण तुहाडा ना होमवर्क रहेगा क्वेश्चन नंबर 4 तक। क्वेश्चन नंबर 4 तक तुसी होमवर्क करके रखने ने। ठीक है, वैसे अगर तुसी सियाणे बनो ना बच्चों तो क्वेश्चन नंबर 5 ते क्वेश्चन नंबर 6 छड्ड देना, वो मैं तुहानू करावांगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 ते क्वेश्चन नंबर 6 छड्ड देना। ते अगर ट्राई करना चाहते हो तो सारे क्वेश्चन कर देना जिवें मैं तुहानू समझाया। क्वेश्चन नंबर 5 ते 6 नैक्सट वीडियो च पेश करांगा तुहाडे सामने।